Welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast. Guys, Arsenal versus Aston Villa at Emirates now. So Dinesh, what do you think about the match? कि क्या मतलब I think you still had a decent game, but what do you think about this match? कि कैसा होने वाला है कि because they also won 1-0 against Everton yeah. In the last match. So what do you think about the preview of this match? The preview of what Arsenal versus Aston Villa, right? मतलब ये भी मतलब Unai Emery. We'll give our predict also. I mean, I predict that we will win the match again. It's going to be again like a Tottenham-esque match because I know how Unai Emery sets against big matches. He is very defensive mindset वाला बंदा है. मतलब he is almost like terroristic in playing against these big teams, but he's very lethal on मतलब transitions. उसको transitions में ही दिमाग लगता है, उसको कहाँ से कहाँ मतलब कौन से एली से उसको मतलब अटैक करना है मतलब ड्यूरिंग मिडफील्ड. जैसे उसने मैन सिटी को पता चल गया था, मैन सिटी का मिडफील्ड खोखला है, तो उसने क्या किया बीच के मतलब he never concentrated on the wings, he never concentrated on the outside. He thought I would fuck them in the middle. So he exactly did the same and it was working wonderfully. So that is how they won. And मतलब he will set up accordingly very मतलब जैसे Manchester United Mings is back. हाँ जैसे Manchester United which how they set up, right? Defensively astute, goalkeeper मतलब एमी मार्टिनेज में 3-4 सेव और मतलब और पाउ टोरेज और I think he's back, right? Mings is back, so probably I think he will start. Both will be very stable and they will try to very compact the midfield. Rely on Morgan Rogers. Morgan Rogers, who is basically there for transition. Matlab he will be the tackle, he will be the press. No, I think Tielemans will be the press guy. Morgan Rogers will be the one who will carry the ball out of the defense. So मतलब he will target Thomas Partey क्योंकि Declan Rice मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा, वो इस साइड रहेगा मतलब Thomas Partey साइड, क्योंकि उस साइड तो Declan Rice is okay, right? And but again, I think we will win the match. It will be a narrow win, of course. But if we score early, it's not going to be narrow. Like because Aston Villa has to score. But उनका जो इम्पोर्टस है वो हमेशा सेकंड हाफ में होता है. मैंने बहुत सारे एस्टन विला गेम्स देखे हैं, उनका इम्पोर्टस हमेशा सेकंड हाफ में होता है. फर्स्ट हाफ दे आर वेरी स्टेट, दे इवन 1-0 राइट, दे विल नेवर अटैक. तूने लिवरपूल वाला गेम देखा होगा इन विच बोथ टीम्स वर डूइंग नथिंग, राइट? 2 कॉर्नर्स में लिवरपूल ने गोल मारा, बट आस्टन विला ने कभी ये बोला कि लेट्स स्टेप ऑन द राइट फुट एंड देन वी विल अटैक. नहीं, they were still waiting for Liverpool's mistake. They almost capitalized on those mistakes, but they were never clinical like what Mohamed Salah did. So it's going to be the same game, I think, and it's going to be a very exciting game to watch as well. I think it boring नहीं रहेगा क्योंकि Unai Emery वाला मैचेस हमेशा boring नहीं रहता क्योंकि वो transition based है and मतलब वो transition flare players also. मतलब उसके पास जॉन डुरान है, फ्लेयर प्लेयर्स है. आई थिंक जॉन डुरान वापस आ गया ना सस्पेंशन से, राइट? हाँ, पर द इशू इज कि अगर वो वॉटकिंस खिलाता है तो आई थिंक दैट्स वेयर आई कम इन द डाउट है देयर कि अगर वो वॉटकिंस को खिलाता है ना तो ही इज द गाय कि ट्रांजिशन में मॉर्गन रॉजर्स वो पूरी दुनिया का 99% काम कर लेगा, बट लास्ट में जाके वो बंदे को तो हेडर या वो टाइम टू थिंक देगा तो फिनिश कर दे, तो उस टाइम वॉटकिंस रख देता है. उसको इंस्टिंक्ट वाले फिनिशेस चाहिए. वो इंग्लैंड वाला याद है तेरे को, बॉल आई फट गोल, उस वाले टाइम नहीं चाहिए उसको ना. या तो दैट्स व्हाई आई थिंक अगर जॉन डुरन खिलाता है वो आगे और उस मैच में तो दैट्स वेयर ही विल बी बेटर. बेई अगर खेलता है ऑन द राइट विंग तो लेट्स सी कि हाउ द कंपटीशन मतलब और द नॉट कंपटीशन बेसिकली द फाइट बिटवीन बेई वर्सेस लुइस कैली. क्योंकि लुइस कैली ने अभी तक पेसिव अगर उसने झेले हैं तो है ही, एंड ही हैज कम आउट ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स आल्सो. ही इज अ वेरी कंपोज्ड गाय. उसमें द मोस्ट थिंग आई नॉट लाइक अबाउट इज कि मतलब वो डिफेंड नहीं करता, डिफेंड तो वो करता ही है, बट लेकिन ऑन द बॉल वो इतना कंपोज्ड है ना कि वो मिडफील्ड में भी आ जाता है. और वो ही स्ट्रांग आल्सो. जिनचैंको को तो धक्का देके तो शफल करके तो हसल हटा के बॉल ले लेता था, लेकिन इस बंदे को तू धक्का देके नहीं हटा सकता. ही स्ट्रांग नाउ 18 पे ही बंदा स्ट्रांग है. मतलब कौन से स्टेरॉइड बाद में देखते हैं, ग्रोथ हार्मोन तो है. बट स्टिल कि ही इज वेरी गुड कि मतलब स्ट्रांग है और कंपोज्ड है. तो दैट्स व्हाट यू नीड फॉर अ गुड सीडीएम आल्सो. अगर वो सीडीएम को अगर तुम लेफ्ट बैक खिला रहे हो तो कोई दिक्कत भी नहीं उसमें. वो बंदा वैसे भी इन्वर्ट करता ही है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स है. तो दैट्स व्हाई बेई अगर खिलाता है कि तू पुट हिम ऑन द लाइन कि तू इन्वर्ट मत कर, क्योंकि बॉल को मिला तो देन बेई हैव अ फ्री स्पेस. टच लाइन विंगर होना चाहिए उसको, बेसिकली पूरा स्प्रेड करना चाहिए. क्योंकि कुलुसेव्स्की जब अंदर आ रहा था
basically he shut the door, right? So you have to go outside with against this guy as well. So matlab ye and also it's not more about, again it's more about taking chances. Both the teams ke liye yahi hai. Aston Villa ke liye bhi yahi hai, Arsenal ke bhi yahi hai. Who takes the chances? Who is more clinical? It's not about the midfield battle. It's not about, you know, playing wonderful football. It's I'm sure both the teams are going to create chances. And it's about taking chances, because Arsenal वाला जो first game है, Villa ने take chances नहीं किया and Arsenal scored. And this match is also going to be the same, quite similar, because transition में तो हमेशा chances बनते ही हैं. It's about who's going to take the chance. और the first goal matters here. And first goal जैसे ही matters. इसको वही कि जैसे अगर फर्स्ट गोल जैसे ही आया तो क्या बोलते हैं, वहीं पे दे हैव समथिंग टू होल्ड ऑन. टॉटनहम की तरह, अनलाइक टॉटनहम, दे हैव क्वालिटी इन डिफेंस एंड मिडफील्ड उसमें कि दे कैन डिफेंड. मतलब कुछ 1-0 अगर उनके पास है, दे कैन समथिंग टू हैंग ऑन उसमें में. Dinesh, do you think what the starting lineup of Arsenal should be? Just जल्दी बता दे. It's the same lineup. What they started against Tottenham, right? It should be the same lineup, except Sterling not starting. Who will start? Martinelli, exactly. Martinelli start. Play where Martinelli Sterling played. Let him play there out of his position. But I want Trossard as well, because भाई उसने थोड़ा बहुत गोल मारा है. Maybe he has something. It's some sort of level of confidence right now, because we can't afford Sterling to play there right now. मतलब वो ट्रैक बैक नहीं कर सकता. एंड उनाई एमरी को पता है अगर स्टर्लिंग है तो वो बहुत बड़ा गड्ढा है, तो वहीं से वो स्टार्ट करवाएगा अटैक. एंड ही इज़ वेरी मेथोडिकल इन दैट सॉर्ट ऑफ टीम, एंड ही स्ट्रक्चर्स his team in such a way that you take advantages of wherever the players are not up to their mark, right? मैन सिटी में तूने देखा होगा ना, उसने कैसे मेथोडिकल उसने ब्रेक डाउन किया. उसने देखा कि बर्नार्डो सिल्वा, कोवाचिच एंड जॉन स्टोन्स, इनका कॉम्बिनेशन बहुत बेकार कॉम्बिनेशन, वेरी स्लो कॉम्बिनेशन. उसने क्या बोला, भाई मॉर्गन रॉजर्स, टीलेमेंस, तुम बीच से ही खेलो, बीच में ही पास दो. एवरी स्पेस इज गोइंग टू गेट क्रिएटेड इन बिटवीन. डोंट गो फॉर द विंग्स, क्योंकि वो मैटी कैश चूतिया है ना. मैटी कैश चूतिया है. मतलब उसके पास एबिलिटी नहीं है इन्वर्ट करने का. उसका भी एक ही है, ही इज अ प्रॉपर राइट बैक. ही इज बॉम्बिंग फॉरवर्ड एंड ही इज वेरी गुड डिफेंसिवली. बस वही है उसका काम. ही कांट डू अदर थिंग्स. तो नहीं है मैटी कैश, इतना नहीं है, डिफेंस नहीं है. इज ओकेश, अच्छा तो नहीं है बट वो उसके पास ही वो बोझो मूवमेंट रहता ही है वो, कि भाई मेरे को एक पक्के याद है, एक मेरे को अच्छे से याद है कि सामने वाली टीम ने 10 मैन थी, उसने वो क्या बोलते 10 मैन पे चले गए थे वो लोग, उनका रेड कार्ड हो गया था. इवन मैन सिटी ने आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, इसने ले लिया. और ये बंदा येलो पे था. तो ये मेरे को लगा कि ये बंदा चिल रहेगा कि एटलीस्ट मैं 10 वर्सेस 10 क्यों खिलाऊं, 11 वर्सेस 10 मेरे न्यूमेरिकल एडवांटेज है, मैं रहता हूं. ये भाई मतलब वो भी इसने टैकल किया, नॉट इन द फील्ड आल्सो, फील्ड में बाहर जाके उसने लात मारी है पता नहीं किसको, एंड ही टुक द येलो एंड 10 वर्सेस 10 हो गया, वहां पे विला हार गई. तो इसकी जो बोझो मोमेंट है इसमें भी बहुत रहता है इसमें. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर मी अबाउट आर्सेनल कि अगर तुम यू डोंट चेंज दिस फकिंग फील्ड कि पार्टे, राइस और ओडेगार्ड, अगर तूने यहाँ पे शफल करके अगर तू मरीनो को लाने का कुछ भी ट्राई किया ना अगेंस्ट अ डिसेंट टीम, डोंट डू इट. Our advice is don't do it. Please don't do it. Yeah. So Dinesh, what's the prediction for this? I think it's going to be 2-1 again. 2-1. I will go for. Yeah. 1-0 भी हो सकता है. Yeah. I would say 2-1 reverse. Villa. 1-2. Villa is winning. Villa win. Yeah. Okay, Villa win. Okay. Okay, guys. Let's discuss about the